It is a great honor to welcome our respected principals and our esteemed chief guests who are now arriving. I kindly request everyone to rise and join us in giving them a warm and gracious welcome with a big round of applause. A very pleasant morning to one and all. It is my proud privilege to warmly welcome you all to this auspicious occasion of Vidya Anand. We extend a heartfelt welcome to our respected principal, Reverend Father Thomas Kumar, Honorable Chief Guest, Sister Dr. Miriam Matthew CJ, teachers, parents, and our loving children who are taking their first step into the world of learning today. Today, we gather here for a very special and auspicious occasion in Vidya Anand, the beautiful beginning of child's journey into the world of learning. Vidya Anand is not just the start of education, but the first step towards knowledge, wisdom, and character building. It is the moment when a child is introduced to letters, values, and the light of learning. In our culture, this ceremony holds great importance as it marks the blessings of elders and teachers, guiding young minds towards a bright and successful future. Let us come together to celebrate this joy
बालिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल रहे तुर्भु माँ ते संगवस्ता कर्माणि. To action alone has dug her right and never at all to its fruits. Let not the fruits of action be thy motive, neither let there be in thee any attachment to inaction. There is no substitute for hard work, and eventually hard work pays. Here we learn the valuable lesson of letting go of the results and not allowing that to dictate our attitude toward our work. A reading from the Holy Bible, Jeremiah chapter 29, verses 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Which means, here God reminds us that He is our creator and protector. He knows our past, present and future. Therefore, He assures us that He will take care of us and our future is secured with Him, provided we trust Him and walk in the path of righteousness. A reading from Holy Quran. Surah Al-Baqarah. And seek her through practice and prayer. And indeed, it is difficult except for humility submissive. The verse explain the importance of prayer and practice, showing that these practice require humility and submission to Allah. The students can draw strength from this verse, knowing that their perseverance and humility will be rewarded. Okay. Please be seated. Every beautiful beginning deserves a warm welcome. To set the tone of today's program, we have a special welcome song prepared. Let us invite our talented performers of class UKG to present the welcome song.
for such a miraculous beginning. Now, I would like to invite Deputy Captain of our school, Swarakshi Singh, to introduce our esteemed resource person and welcome our loving guests. Honorable Reverend Father Principal, respected Chief Guest, Professor Dr. Sister Marian Matthew, esteemed teachers, honored parents, and our young learners, good morning to all. We are incredibly blessed to have Professor Sister Marian Matthew with us today, a person whose life's work embodies the spirit of service and excellence in education. Professor Dr. Sister Marian Matthew CJ, former head and dean, Allahabad School of Education, Shuats, is a member of the Congregation of Jesus. She is a dynamic person who has dedicated her life to the service of humanity and the cause of education. Under her supervision, 17 research scholars have been awarded PhD degrees. She has over 28 years of administrative experience. She has worked in the university for the past 19 years till March 2024. She has also presented over 48 research papers, some of which are published in reputed journals. As a resource person, she has conducted more than 53 workshops and orientation programs for the teachers of different schools and colleges across India, and also conducted faculty development programs for the staff of Shuats. She has been appointed as an external examiner by a member of reputed universities across India for evaluating the PhD thesis. She has been associated with MHRD for more than 6 years as a member of NMC-ME, National Monitoring Committee for Minorities Education. In recognition of her contribution in the field of research and education, she was conferred with the Indo-Asian Best Educationist Award 2021 for her consistent superior performance in teacher education. She has also been conferred Best Citizen of India Award as well as Rashtriya Gaurav Award 2015 by India International Friendship Society. She has also received Honor of Appreciation Award as a speaker at OLC MENA for 2 international conferences, 2013 Dubai and 2014 at Abu Dhabi respectively. Professor Marian Matthew has visited several foreign universities for academic purposes. Her vision is to enrich the Indian education with a blend of modern and traditional values of peace and harmony, so that the youth of our country contribute positively to the development of humanity. Now, I request Reverend Father Principal to present Professor Dr. Sister Marian Matthew with a bouquet in the honor of her relentless contribution towards the well-being of humankind. हर नई शुरुआत अपने साथ अनगिनत संभावनाएं लेकर आती है और आज हम उन्हीं संभावनाओं का स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं. Today we gather to witness a truly meaningful beginning, Vidya Arambh. Vidya Dadati Vinyam, Vinyat Yati Patatam, Patatvat Dhamma Pramati, Dhanat Brahman Tatha Sukha. This timeless thought reminds us that education is not merely the pursuit of knowledge, but the cultivation of humility, character, and true worth. On this auspicious occasion, we
celebrate the first step in a journey that will shape minds and define futures. This year, the movement holds even greater pride as St. Thomas celebrates its Ruby Jubilee, 40 years of excellence, 4 decades of nurturing intellect, strengthening values, and building a legacy that continues to inspire. To our young learners, what may seem unfamiliar today will become a space of comfort and confidence. In time, these classrooms will not just be places of learning, but places where you discover your voice, your strength, and your identity. Dear parents, your trust in this institution is deeply valued. As St. Thomas, we believe that education extends far beyond academics. Guided by a commitment to serve God and our country, our motto of character formation with academic excellence, we strive to develop individuals who are not only knowledgeable but also principled, responsible, and compassionate. Because ultimately, education does not merely inform, it transforms. To our young learners, approach each day with curiosity, courage, and a willingness to grow. Today marks your beginning, a beginning filled with possibilities, learning, and growth. St. Thomas की ओर से इस 40 वर्षों की गौरवशाली परंपरा में आपका हार्दिक स्वागत है. Welcome to a legacy of excellence. Welcome to a journey of values. Welcome to your new beginning. Thank you. Children are like little stars. They shine with innocence, joy, and happiness. And now it's time to witness that sparkle on stage. Get ready to tap your feet and enjoy the adorable performance by our little ones from nursery. Their tiny steps and sweet smiles are sure to win your hearts. सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम
धोखे से न रुके मर्जी से चले बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे सुर चले हम Children have a beautiful way of expressing big ideas through their little actions. Today, our tiny stars from LKG are all set to present a wonderful skit filled with fun, learning and creativity. हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक नाटक के जरिए घर, स्कूल और सड़क सुरक्षा के कुछ नियम बताएंगे जिनका पालन करके हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा ही अनमोल है। आओ सीखें। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा, मैं खेल रहा हूँ। दिखाओ जरा मुझे भी, क्या खेल रहे हो? अरे ये तो बहुत खतरनाक है। अभी तुम छोटे हो। तुम्हें माचिस, चाकू, कैंची इन चीज़ों से नहीं बल्कि अपने खिलौनों से खेलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और इन सब चीजों से कभी नहीं खेलूंगा। अरे अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक काम करती हूँ, दवाई खा लेती हूँ। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिना किसी से पूछे दवा नहीं खानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमेशा किसी बड़े से पूछकर या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही दवा खानी चाहिए। पापा तो फोन पर बात कर रहे हैं, चलो मैं ही उनका काम कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये क्या कर रहे हो? इससे तुम जल सकते हो या फिर तुम्हें करंट लग सकता है। हमेशा याद रखो कि बच्चों को कभी भी स्विच बोर्ड या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए। ठीक है पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। Don't push, be quiet and walk in line. Good morning, ma'am. Good morning, students. Sit down. बच्चों, जब भी कोई स्ट्रेंजर मिले तो क्या करना चाहिए? बताओ। मैम, नहीं पता। अच्छा, चलो मैं बताती हूँ। बच्चों सुनो ध्यान से बात, ध्यान से सुन के रखना याद। बच्चों सुनो ध्यान से बात, ध्यान से सुन के रखना याद। स्ट्रेंजर से ना करना बात,
स्ट्रेंजर्स के ना जाना साथ, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं डेंजर, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं डेंजर, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं डेंजर, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं डेंजर। कोई टॉफी चॉकलेट दे तो क्या करोगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कोई खिलौने गिफ्ट्स दे तो क्या करोगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो आप लोग मेरी बात को याद रखोगे ना और कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाओगे? यस मैम। चन पकैया बात हमारी सुन लो भैया, जीवन अपना तुमको बचाना, सीख समझ कर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल जरूर अपनाना, इसको कभी तुम भूल न जाना, ट्रैफिक का ये पहला रूल, इसको बना लो अपना उसूल। रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। मुड़ना हो तो हाथ देकर ही मुड़ना, सर को बचाना हो तो हेलमेट जरूर पहनना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल को निकलने देना, गाड़ी चलाते हुए कभी मोबाइल पे बात न करना। ये छोटे छोटे रूल इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल इनको ना जाना भूल। जिंदगी अनमोल है, चलने का नाम है, जरा तेज चलना भी तो खतरे का पैगाम है, जिंदगी सभी जरूरी ऐसा कुछ सा काम है, जो ना समझे बातें ऐसी भैया वो नादान है। और वैसे भी रफ्तार से ज्यादा जिंदगी जरूरी होती है, तो भैया इसलिए रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। मैम आप ही बताइए, सब लोग कहते हैं ये मत करो वो मत करो, तो आखिर हम करें क्या? मैं क्या करूं माँ, क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? बेटा हमेशा आपको अपने से बड़ों की और अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। Please give them a big round of applause. Well done, everyone. Thank you for bringing a smile to our faces with our amazing skits. Attendance is not just about being present in school. It reflects dedication, discipline, and a strong commitment to learning. Today, we take a moment to appreciate those students who have shown exceptional consistency in achieving 100% attendance for 2 consecutive years is truly commendable. It shows their sincerity, responsibility, and enthusiasm towards education. Now, it's time to honor these inspiring students, Satvik Mishra and Karthik Tripathi, with a memento as a token of appreciation for their remarkable achievement. So, I request our respected principal to kindly come forward and present the memento.
हवा में ऐसे उठाओ, टांग से टैंगो करके दिखाओ। हम तो कमरिया चमके हिलाओ, सांस भरो तुम साथ में गाओ। सांस है बाकी गाओ, इतनी जोर से ताकि जो सुन ले वो गुम हो जाए, छोड़ के सब कुछ वो भी गाए। पंछी के जैसे हवा में उड़ जाओ, आगे आते आते पीछे मुड़ जाओ। कंटू कमरिया जम के हिलाओ, सांस लो यारो साथ में गाओ। नाचो जब तक होश है बाकी, नाचो जब तक जोश है बाकी। पल आए ना आए, जाने कल को क्या हो जाए, जाए जाए। चंदू के चार जाने, चंदू के चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई। चंदू के चार जाने, चंदू के चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई। Wow, what a fantastic performance by our little jams. Let's give them a huge applause. Learning begins with small steps, and every little steps lead to a bright future. As we celebrate Vidya Aram, we now move to a joyful and interactive activity that makes learning fun and meaningful. Our tiny learners are all set to showcase their knowledge through a flashcard activity. Now, I request our Honorable Principal to introduce today's flashcard activity. Dear and respected, most reverend Dr. Sister Marian Matthew, the chief guest of this day, esteemed parents, teachers and my dear children, good morning to all of you. Already my school captain Surakshi Singh has welcomed all of you. I am here to do the most important event of this day, that is the flash card activity. जिस प्रकार इस संसार के लिए ईश्वर सबसे प्रथम है, उसी प्रकार हर भाषा के लिए एक अक्षर जो प्रथम है वो है आ। ये अलग भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर चीज में वो शब्द जो आ ये वो प्रथम आता है। उसी प्रकार गिनती में नंबर में 1 अक्षर पहले आता है। आप लोग इतने सारे प्रोग्राम देखे होंगे आज, और उसमें जो पिक्चर आप लोगों ने दिखाया, वेलकम दैट इज विद्यारंभ जो इन्विटेशन कार्ड में आप देखे होंगे मम्मी पापा बच्चों को पकड़े हुए हैं और टीचर सामने बैठी है। एक बच्चे के लिए विकास में ये तीनों सहयोगी है, माता पिता एक तरफ, टीचर एक तरफ, बच्चे बीच में। हम सब मिलकर बच्चों को बनाते हैं। इसलिए ये जो प्रोग्राम आपने देखा है, जरूर टीचर लोग ने क्लास में सिखाया है, लेकिन पेरेंट्स इन बच्चों को लाकर क्लास में छोड़कर बाहर बैठे थे। 1 घंटे के बाद उनको ले जाते थे, घर में जाकर उनको प्रैक्टिस कराते थे। टीचर लोग उसको रिकॉर्डिंग करके उनको भेज देते थे व्हाट्सएप में, और पेरेंट्स लोग घर में उनको प्रैक्टिस कराते थे। क्योंकि 7-10 दिन छुट्टी थी, एग्जाम था, सब कुछ था,
लेकिन बच्चे लोग ऐसे प्रैक्टिस किए जैसे कि मैंने भी प्रैक्टिस किया। इसका कारण है टीचर्स और पेरेंट्स का सहयोग। उसी में बच्चों का ये काबिलियत यानी खूबियाँ टैलेंट्स बिखरते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक ही चूक जाए, अगर पेरेंट्स कहें नहीं हम बच्चों को नहीं ला सकते स्कूल, हम बच्चों को यहाँ पर डांस करा नहीं सकते, या मान के चलिए कोई ड्रेस मांगा गया वो ड्रेस हम नहीं करा सकते, हम प्रैक्टिस कराने के लिए समय नहीं है, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। या इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता हो, टीचर्स लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे, केवल पढ़ाते हैं, उसमें भी बच्चे का सर्वगुणा यानी द ऑलराउंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर पॉसिबल, उसको दिखाने के लिए आज हम लोग ये विद्यालय स्टार्ट किए हैं। इसमें टीचर्स को सुपरवाइज करेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चे को उंगली पकड़कर, इसमें 3 अक्षर है, एक अंग्रेजी में ये और हिंदी में आ और मैथ्स गणित में ये तीन लिखेंगे। उसके पहले उनका नाम, बच्चे के नाम लिखेंगे। ये कार्ड हम लोग साल भर बुलेटिन बोर्ड यानी क्लास में जो नोटिस बोर्ड है उसमें लगा कर रखेंगे। साल के अंत में जब उनका ग्रेजुएशन होता है, बच्चे का ग्रेजुएशन डे हम लोग बनाएंगे, वो ड्रेस वगैरह देकर टोपी सब पहनाकर सर्टिफिकेट देते समय ये कार्ड भी उनको दे देते हैं, ताकि उनका ये मेमोरेंस यानी रिमेम्बरेंस हो जाए, एक मेमेंटो टाइप के बच्चों के साथ रहेंगे। शुरुआत में नर्सरी में स्पेशली जो बच्चे नर्सरी में हैं, ये पहली बार लिखते होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी सीख लिए होंगे, दे बिकम स्क्रिबलर। जैसे आप जानते होंगे, हम जब भी किसी घर में जाते हैं, पूरा दीवार में ऐसे लिखा रहेगा जैसे कोई आदि मानव गुफा में लिखा हो, पूरा अच्छा पे पूरा ABCD से लेकर, और कभी कोई अक्षर समझ में नहीं आएगा, कोई चित्र पेंट करो तुरंत लिखना शुरू, इसको बोलते स्क्रिबलर। वही से शुरू होता बच्चों को लिखना। और जब 12th के बाद यहाँ से निकलेंगे, वो स्कॉलर बन के निकलेंगे, जो हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, ये क्लास 12th के बच्चे लोग। स्टार्टिंग में ये भी दीवार में लिखने वाला, आप कितने भी घर में मना करिए वो लिख देगा पेन किनारे पर, खिड़की में लेकर, जमीन में लेकर, अलमारी में लेकर, पेन मिला कि नहीं, पेंसिल मिला नहीं, कुछ भी मिला हो, पेन मिला, वही क्लास में भी करते हैं लोग। लेकिन उससे शुरुआत से लेकर ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका सहयोग चाहिए, टीचरों का सहयोग चाहिए। उसके साथ हम ये एक मैं कहूँगा एक पवित्र कार्य शुरू करेंगे, पवित्र कार्य आज का दिन हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूँगा सभी अभिभावकों से, कृपया बच्चे के नाम ऊपर लिख दीजिएगा पहले, आई रिक्वेस्ट द टीचर्स टू काइंडली सुपरवाइज, बच्चे के नाम ऊपर, जिसको भी कार्ड मिला हो बच्चे के नाम कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, केवल बच्चे के नाम नेम लिखा कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। छोटे बच्चे लोग छोटा अक्षर नहीं पढ़ पाएंगे, कैपिटल लेटर नेम करके लिखा है, वहाँ बच्चे का नाम लिख दीजिएगा, क्लास नर्सरी पहले से लिखा हुआ। अभी हम अपने अपने इष्ट देवताओं, देवी देवताओं का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर, बच्चों से उनको उंगली पकड़कर, पेंसिल बच्चे पकड़ने दीजिएगा, आप बच्चे का उंगली पकड़कर ये लिख दीजिएगा, ये पहला अक्षर ए लिख दीजिएगा, ये लिख सकता, फैंटास्टिक, नहीं तो पेरेंट्स से निवेदन करूँगा बच्चे का हाथ पकड़कर ये नहीं तो उसका ये पूरा पेज में आना है। पहला अक्षर ए जिसमें सिर्फ ये लिखना दीजिएगा। उसके बाद हिंदी में हमारा देश भाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी में आ लिख लीजिएगा, पहला अक्षर आ लिख लीजिएगा, बच्चे से लिखवाइएगा। कुछ बच्चे LKG का UKG का भी होंगे, लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए उनसे नहीं लिखवा रहे हैं। नर्सरी बच्चे जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं उनका हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में आप क्या लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, बड़े होते जाइए और सफल होते जाइए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
activity. And when it comes from our little UKG staff, it becomes even more special and adorable. So get ready to smile, clap and enjoy as our tiny dancers set the stage on fire with their energy and cuteness. ये मेरी बड़ी है प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, मम्मी पापा रखते हैं ध्यान, मेरी सेफ्टी उनकी शान। गुड टच है सेफ और सही, बैड टच को बोलो नहीं, अगर मन कहे ये ठीक नहीं, जोर से कहना नो नहीं। गुड टच है सेफ और सही, बैड टच को बोलो नहीं। गुड टच है सेफ और सही, बैड टच को बोलो नहीं। जब मम्मी गले लगाती है, पापा प्यार जताते हैं, टीचर शाबाशी देती है, दिल में खुशियाँ भर जाती हैं। अगर मन में मुस्कान आए, डर कहीं भी पास न आए, तो समझो वो है गुड टच। झट से कहो थैंक यू वेरी मच। गुड टच है सेफ और सही, बैड टच को बोलो नहीं, अगर मन कहे ये ठीक नहीं, जोर से कहना नो नहीं। कोई छुए और अजीब लगे, दिल घबराए बेचैनी लगे, तुरंत हटो अलर्ट हो जाओ, जोर से कहना रुक जाओ। शर्माना नहीं, डरना नहीं, गलती इसमें तुम्हारी नहीं, मम्मी पापा को सब बताना, तुम हो बहादुर कुछ न छिपाना। मेरी बॉडी मेरी चॉइस, ये बात सबको बतानी है, डर को दिल से दूर करो, आवाज ऊंची उठानी है। हम है स्ट्रॉन्ग, हम है ब्रेव, सच बोलना ही बेस्ट है, कोई भी गलत लगे अगर नो कहना भी करेक्ट है। गुड टच है सेफ और सही, बैड टच को बोलो नहीं, अगर मन कहे ये ठीक नहीं, जोर से कहना नो नहीं। समझदार हो तुम ये जानो, मॉम से कहो डैड से कहो, टीचर को भी बता दो तुम, सारी चिंता उनकी कर दो गुम। समझदार हो तुम ये जानो, मॉम से कहो डैड से कहो, टीचर को भी बता दो तुम, सारी चिंता उनकी कर दो तुम। Wow, what an amazing performance by our little friends. Give them a huge round of applause. Well done, very good children. Now we are privileged to have such an experienced and knowledgeable personality among us. I humbly invite our respected resource person, Sister Dr. Mary Matthew C.J. to the stage to enlighten us with their words. Respected Reverend Father Thomas Thamam, the principal of the schools, all the dear teachers, मेरे प्यारे अभिभावकगण, आप प्यारे बच्चे, मैं आपको संबोधित करने के पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं हिंदी में बात करूँ या अंग्रेजी में, और दोनों मिला करके, और बाइलिंगुअल। पेरेंट्स मैं आपसे पूछ रही हूँ, बाइलिंगुअल दोनों मिला करके, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इतना सा सुंदर कार्यक्रम रसूली हमने देखा है, आपको कैसा लग रहा है? तो आपके मन में एक उम्मीद जगह होगा, अगले साल आपके बच्चे यहाँ स्टेज में विद्यारंभ का दिन में आपके लिए जो नया भावी पीढ़ी के लिए प्रोग्राम कर लेंगे। ये प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, इतना सुंदर प्रस्तुति था, हर एक प्रोग्राम के जरिए आपको एक मैसेज मिल रहा था, है कि नहीं? You learned some values through the programs that was given to showed it performed before you, and I'm sure there's a lot of joy in your mind. आपके मन में बहुत खुशी महसूस होते होंगे, क्योंकि आपका बच्चे
इस अच्छे स्कूल में प्रवेश कर रही है आज से। आज का दिन आपके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र क्षण है। जब आपके नन्हे मुन्ने विद्यार्थी की यात्रा शुरू कर रही है तो ये केवल कक्षा में प्रवेश नहीं कर रही है, लेकिन ये सीखने, विकास और एक जीवन के दुनिया के व्यापक दुनिया में प्रवेश करते हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा आशाएं, उम्मीदें हैं, मुझे मालूम है, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत आपके बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे करने जा रही है। इससे आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं। जब आपके बच्चे पहली बार आपके उंगली पकड़ती, चलना सीखा, आपके मन में क्या भावना थी उस समय? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सबसे पहले आपके बच्चे आपका उंगली पकड़कर चलने की कोशिश किया, आपके मन में क्या महसूस हुआ है? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? पहली बार बच्चे आपके उंगली पकड़कर चलना शुरू किया, खुशी हो गई और गर्व हो गई, आपके मन में डर था वो कहीं जाके गिर ना जाए। कोई बोलेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके मन में क्या था जब पहले बार आपके बच्चे आपका उंगली पकड़ करके चलना शुरू किया? सबसे पहले खुशी, इमीडिएटली हम लोग ने वीडियो ले लिया उसका पहले बार। आपका प्रिंसिपल जवाब दे रही है, आप क्या करते हैं बताइए? डर लगता है, कुछ भी डरती है। अब आज का दिन एक बार आपका बच्चा एक नया कदम रख रही है शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी जिंदगी का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए पहला कदम रख रही है। Dear parents, your voice gives them strength. Your words give them confidence. Your voice gives them strength. Your confidence gives them मनोबल। So उस दिन उनका चलने का शुरुआत किया है, अभी एक नया शुरुआत है। आपका सपोर्ट, आपका प्रोत्साहन आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। फादर ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। ये जो पिक्चर में आपने देखा है, पेरेंट्स, टीचर, बच्चे बीच में। सो आपको ये बच्चे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपका पूरा सहयोग देना बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में प्रिय अभिभावक, आज के तेज रफ्तार ये दुनिया में आप देखेंगे, आप अपने बच्चे को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन whatever you give, they will forget. The things that you give, good clothes, good toys, उन लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपके प्यार बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। तो जब आप बच्चे को लेकर के आज विद्यारंभ के लिए, शुरुआत के लिए आप बच्चे को लेकर यहाँ में आए हुए हैं, आपके मन में ये तय करना है, आज मेरा बच्चा ये विद्यालय में प्रवेश कर रही है, मैं उसके साथ खड़े रहेंगे, उसका पूरा सहयोग दे देंगे, उसके लिए समय दे देंगे। आजकल के पेरेंट्स को बच्चों के लिए बिल्कुल समय नहीं है, मोबाइल उनके हाथ में दे करके उसको कुछ कराते हैं। They satisfy the children by giving the mobile in their hands. Once the children get the mobile in their hands, they are in their own world and you are happy about it. But today, आज आपको यह प्रयास करना है, अच्छी शिक्षा, सुगमय जीवन,
अपने बच्चों को प्राप्त होना है, आपका सहयोग की बहुत बहुत जरूरी है। As I said, a child may forget whatever you have given, but the child will not forget what the love that you have given, and आपका शब्द उनका आत्मविश्वास करते हैं, आपका धैर्य उसके लिए एक शक्ति प्रदान करता है। आपका मूल्य, किस मूल्यों के आधार पे आप अपना जीवन बिताते हैं, ये बच्चों के लिए मार्गदर्शन करेंगे। सो डियर पेरेंट्स, आप अपने मूल्यों को जांच लीजिए। Am I setting a good example for my children? किस तरह से आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं? पति पत्नी आपके बीच में, पेरेंट्स मम्मी पापा आपके बीच में किस तरह से आप बात करते हैं? आप किस तरह से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? ये बच्चे आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपका हर शब्द से, हर कार्य से बच्चे सीखते हैं। अगर आप सोचेंगे मेरे बच्चे को मैंने ये स्कूल में डाला है, संदर्भ स्कूल में डाला है, मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गया है, कभी नहीं। अगर आपका सोच ऐसा है, आज आपका सोच बदलने का बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को आपके सहयोग बहुत जरूरी है। जब आप उसको प्यार से नहीं समझाएंगे, बच्चे बिगड़ेंगे। अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसका व्यवहार बिगड़े, तो आप जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के बीच में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जो आपका हर एक शब्द, हर एक व्यवहार बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। आपको ये भी देखना है, एट दिस टेंडर एज व्हेन द चिल्ड्रन आर एंटरिंग द स्कूल, इस कॉमन उम्र में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोग प्रवेश कर रहे हैं। Their education does not depend on the marks, but their education depends on the way they train their character, mold their behavior. So इस कॉमन उम्र में शिक्षा का मतलब किताबों और अंकों से नहीं है, लेकिन इसका मतलब है जिज्ञासा को पोषण करना, nurture the curiosity in the children, जिज्ञासा का पोषण करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, साझा करना सीखना और दूसरों के साथ रहने का आनंद खोजना। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त बना देंगे, दूसरे के साथ कैसे शेयर करना सीखेंगे। ये सब बच्चे आपसे सीखते हैं। इसलिए बोलते हैं सबसे पहले आपका घर बच्चे का क्लासरूम है, सबसे महत्वपूर्ण कक्षा आपका घर है। घर का माहौल क्या होगा आपको भी पता है। अगर आप पेरेंट्स आपस में लड़ते तो बच्चे भी लड़ना सीखेंगे। आप अपने जो नेबर्स हैं उनसे लड़ना शुरू करेंगे, बच्चे भी एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करेंगे। सो आपको ये आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आपको ये डिसाइड करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, किस तरह से मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करने का, किस तरह से मैं अपने बच्चों को परवरिश करेंगे। कैसे करता नहीं है जो स्कूल का भी कैसे करेंगे। सो डियर पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए स्कूल भेजते हैं, आप उनका साहस बढ़ाते हैं। When you send your children with a smiling face, बच्चे आपको मुंह देकर के मुस्कुराएंगे और आप उन्हें साहस प्रदान करता है जब आप उनकी छोटी छोटी कहानियां सुनने को पेशेंस रखते हैं। Your students, your बच्चे, your नन्हे मुन्ने बच्चे, they require not the presence that you give, but your presence. आप कितने भी सुंदर खिलौने दे रहे बच्चों को, वो कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन आप उनके साथ उपस्थित हैं विद हार्ट एंड सोल। उसमें आप उनके छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे प्रयासों को आप सराहना करें, उसका व्यक्तित्व को आप सशक्त बनाने के लिए कोशिश के मौका दे रहे हैं। छोटी छोटी कहानियां खोल करके बच्चे आपके पास आ जाएंगे, वो
पेशेंस रहना है, टाइम देना है। जो छोटे कदम बच्चे ले रही है उसको सराहना करके उसको प्रोत्साहित करना आपका काम रहेगा। अब हमको ये भी सोचना है चाइल्डहुड बच्चे का जो बचपना में है वो हमेशा रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं है, वो बढ़ते रहेंगे, they will grow up, but this precious time of childhood is most important foundation of their life. These nursery classes and up to 1 to 4 classes, up to the age of 6, 7, 8. तो मुझे अपना ये बचपन इसकी सोच करके आपको ये पल को पहचानना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पल को आपको अपनाना है, बच्चों को समझाना है। और ये भी आपको सोचना है, आपसे बात करके मेरे मन में एक छोटी सी कहानी मन में आ रही है। एक स्कूल में बहुत साल पहले ऐसे विद्यालय शुरू हो रहा था। एक माँ ने अपने बच्चे के हाथ में एक छोटा सा दीपक, the mother gave the child a small lamp, lighted lamp. So बच्चे ने क्या पूछा, मम्मा मैं इससे क्या करूँ? ये छोटा सा रोशनी दे रही है, इससे मेरे लिए क्या फायदा है? तो मुस्कुराते हुए माँ बच्चों को समझाते हैं, ये छोटा सा दीपक आप पूरा दुनिया को रोशन नहीं करेंगे, लेकिन आपका अगला पग के लिए, अगला नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका रोशनी देंगे। देखिए प्यारे अभिभावक, ये कितना महत्वपूर्ण वे उन्होंने समझाया। ये पूरा दुनिया को रोशन नहीं कर सकता है एक छोटा सा दीपक, लेकिन और ये नेक्स्ट स्टेप इट लाइटन्स द पाथ। मेरे प्यारे डियर पेरेंट्स, this is your responsibility. Today onwards, you got to become that Deepak in the life of children. उनका जीवन की नैया को आगे बढ़ाने के लिए, आगे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक दीपक बन के बच्चों के साथ आपको हमेशा खड़े होने की जरूरत है। आज आपसे संबोधित करते, आपसे वार्तालाप करते मेरे मन में आ रही है, आपके सारे नन्हे नन्हे बच्चों को मैं ईश्वर के हाथों में सौंप दी, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके देख रेख के लिए। क्योंकि हम लोगों ने पवित्र वचन से बाइबल पाठ करता है, पवित्र वचन से पाठ पढ़ करके हम लोग ये विद्यारंभ का या आज का कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें हम लोग सुना है, God has a plan for you, for your prosperity and not for destruction. तो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बिना ईश्वर का आशीर्वाद से हम कुछ भी नहीं कर सकता है। ये आप कितना भी टैलेंटेड पेरेंट्स हो, कितना रेप्यूटेड पेरेंट्स हो, लेकिन बिना परमेश्वर के आशीर्वाद से और आशीष से आप कुछ भी नहीं कर सकता है। ये विश्वास करिएगा, आपका आत्मविश्वास ये होना चाहिए। बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसका कौशल को बढ़ाना है, खूबियों को बढ़ाना है, तो आपको ये आज ही डिसाइड करना है, हम बच्चों को कर लेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे को परमेश्वर हमेशा उनके छत्र छाया में रखें। My dear teachers, today you are starting a new journey of your life. You are teachers, experienced teachers, but आपको ये महसूस हो रहा है, precious lives are coming to your classroom, and this classroom is not for the routine work. The young minds that are entrusted to your care is for you, how you deal with them. And teachers, it's a very sacred responsibility for you. My dear teachers, these children
you become their world. You become their world. And I pray to God that He may put a gentleness in your hands, kindness in your words, and generosity in your heart and love. Gentleness in your hands, generosity in your heart, and kindness in your dealings with them. Dear teachers, I know from experience as a teacher, dealing with the little ones is the most difficult thing. You enjoy being with them. There may be days when your energy runs low, energy goes down, class becomes restless. Those moments you need to look at each child. Each child sitting before you is someone's prayer, someone's world, someone's pura dunya. So dear teachers, I would like to motivate you, encourage you, exhort you that for these children, you are everything. They see the whole world in you and they run to you for safety. First time they are leaving the comfort of the homes and they become very, very scared. It is your words that has to give them strength, sustenance and support. And dear teachers, I encourage you to look at each child as your own child. And then you know however tired you are, whatever you are doing, you will give your wholehearted attention to us, that every child, maybe child may be irritating, noisy, but still you have a sacred duty there. What they require is not your correction, but connection is required. The greater the bonding, the stronger you become a role model for the children. They don't require to correct it. They require your connection. With the heart and soul, when you are connected with your children, then automatically they become your own children at this tender age. And I would encourage you teachers, this many children, आपके classroom में they will come. Give your whole attention. That is your reward as a teacher. When you can see, arouse their curiosity. Learning is not that important at this initial stage. What is important is how they settle down, how they mix with the other children. When they come to you with all the curious questions, have patience. Lastly, नन्हे मुन्ने बच्चे, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। आपके लिए ये नया दुनिया है। आपका टीचर्स आपके लिए सब कुछ बनेंगे। आप अपने मम्मी पापा को छोड़ करके क्लास में आ जाएंगे। आपका टीचर्स बिकम्स एवरीथिंग फॉर यू। आप यहाँ पे आपको स्कूल में ढेर सारे दोस्त मिलेंगे। एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के आप सीखेंगे। रंग बिरंगे फूलों को बनाने के लिए आप सीखेंगे। सो आपसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, आप आज से ये दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, शिक्षा की दुनिया में। आपके टीचर के ऊपर भरोसा रखें। आपका टीचर आपके लिए सब कुछ है। God bless you, dear parents, teachers, and little ones. Thank you, dear sister, for inspiring and informative words. Words are not enough to thank you for your valuable presence and guidance. Now I request our principal to kindly come forward and present a token of appreciation.
Thank you, dear sister. Every institution runs smoothly with proper guidance and discipline. To enlighten us with the rules and regulations of our school, I humbly invite our respected principal to the stage. रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके पहले मैं अभी तक जो भी प्रोग्राम हुआ और जो सिस्टर ने प्रेरणादायक अपना मधुर वचन से हम लोग को प्रेरित किया है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन है। अक्सर हम लोग जब सोचते हैं कि बच्चों को अपने स्कूल में एडमिट कर दिया है, सर्वप्रथम सबसे मुश्किल काम टीचर्स लोग के लिए है कि मम्मी पापा का नाम जगह को लेना। स्कूल में एक टीचर का काम होता है सबसे पहले मम्मी पापा का जगह लेना। अभी तक जो छोटे बच्चे थे उनके लिए सारी दुनिया सब कुछ मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी छोटे भाई बड़े बड़े। जब एक क्लास में आ जाते हैं अचानक एक अजनबी एक लेडी टीचर, नॉर्मली हम लोग लेडी टीचर रहते हैं, उनका हम लोग मदर टीचर कहते हैं। मदर टीचर उनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। माता पिता का नाम जगह कोई नहीं ले सकता एक टीचर के सिवा। तो शुरुआत में जैसे बच्चे लोग आ जाते हैं क्लास में, छुट्टी के बाद आप लोग घर में जब बच्चे पहुंचते हैं आप पूछेंगे बेटा आज मैम ने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। लेकिन पहले कम से कम 10 दिन तक क्लास में बच्चे लोग सबसे पहले सवाल पूछते टीचर से, मैम घंटी कब बजेगी। 10 दिन तक यही सवाल। क्लास में आएंगे बैठेंगे, 1 सेकंड भी नहीं होगा, मैम घंटी कब बजेगी। क्यों? मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है, या मेरे पास आएंगे फादर वो कैमरा दिखाइए गेट का, मेरी मम्मी कहाँ खड़ी है, मेरे पापा कहाँ। उनका ये मतलब सोचना यह है कि आपको क्लास में छोड़कर मम्मी पापा गेट के बाहर खड़े हैं, तो आप लोग को घूम के टिकाना पड़ेगा। नहीं बेटा लोग गए, फोन करके बुलाएंगे। 10 दिन लगता है कि एक टीचर को बच्चे का विश्वास जीतना। एक बार विश्वास जीत लिया आपका नंबर कट गया, समझ लीजिए। आप घर पे आएंगे बच्चे सवेरे से शाम तक, मेरे मैम ने ऐसे कहा, मेरा मैम ने ऐसे कहा, मेरा मैम मेरा नंबर था, मम्मी पापा का नंबर कट जाता जिस समय बच्चे ने मैम से प्रेम कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी एक व्यक्ति है जो मेरी भलाई चाहती है, आप मेरा प्यार मुझे प्यार करती है, तो वो आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी आ जाता है 10 दिन, टीचर लोग डांस सिखाएंगे शुरुआत में। उसके बाद जब मैं क्लास में जाता हूँ, जाकर नर्सरी में बैठता हूँ, बोला आज मैम नहीं आएगी, नहीं आएगी मैम, अब चलिए बाहर, हमको बाहर का रास्ता दिखा देगा। और मैम किसी कारण वजह से एब्सेंट हो गई, किसी और टीचर को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इस तरह का भले ही हम लोग पास 2 टीचर हो गए, स्टार्टिंग में हम लोग रखते हैं, लेकिन आप ये मेरा अनुभव है, आप भी अनुभव करेंगे कि 10-15 दिन के बाद बच्चे आकर टीचर के बारे में ही बात करेंगे। अगर टीचर ने कोई स्टार दे दिया बच्चे को, स्टार बहुत अच्छा लिखा बेटा, एक स्टार, दैट इज लाइक ओलंपिक मेडल, आप उसको मिटा नहीं सकते। और कॉपी में एक स्टार दे दिया, घर में जो भी आएगा जाएगा सबको देखा मैम ने स्टार दिया, एक स्टार। दिस इज द चाइल्ड्स वर्ल्ड। तो एक बच्चे की तरह आप बच्चे को एक्सेप्ट करके उनकी बात सुनेंगे। जैसे सिस्टर ने कहा, नेवर से अरे बोर हो गए, सेम चीज आप सवेरे से शाम तक बोल रहे हो, कल भी यही बात बोली थी, सुनिए प्लीज। उसी तरह पापा को भी जब आएंगे जॉब से, उनको भी सुनाएंगे रात में 10 बजे तक। दूसरी बात, अगर बच्चे सवेरे उठकर आप 6 बजे 6:30 7 बजे स्कूल है, आप 6:30 बजे उठाते हैं, उठने के बाद बच्चे रेडी हो जाते हैं, स्कूल आने के लिए तैयार हो जाती है, 100% सक्सेस। अगर बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार है तो 100% सक्सेस है। वही है आपका शुरुआती दौर में, यानी
अभी तो अप्रैल में कुछ स्कूल चलेंगे, फिर मई गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, जुलाई में फिर स्कूल शुरू होगी, फिर बच्चे लोग जिनका घर में नाना नानी दादा दादी है वो बहुत मुश्किल होगा फिर घर से स्कूल लाना। लेकिन जुलाई के बाद जब बच्चे कहते हैं मुझे स्कूल जाना, आप कहेंगे नहीं बेटा आज छुट्टी है, नहीं मुझे स्कूल जाना, 100% सक्सेस कि आपका बच्चे सही रास्ते पर। अगर वो कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मैम मारती है और मैम ये नहीं करती है, वो करती है, मुझे डांटती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, आप वेट मत करें, ओके कम एंड मीट द टीचर्स, क्या हो रहा है क्लास में, क्या हो रहा है, आराम से आप कराएंगे। हम लोग हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है और टीचर लोग भी क्लास में जाकर ही बच्चों को लेकर आएंगे, आप क्लास में ही बच्चों को छोड़ेंगे। इसलिए आप टीचर से बात कर लीजिए ना क्यों बच्चे लोग स्कूल आने के लिए और क्या प्रॉब्लम इनको हो रहा है, तो पता चलेगा कि हाँ उनका थोड़ा दिक्कत हो रही है घर से बाहर निकलने के लिए, मम्मी पापा के सिवा किसी और का एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, हम लोग दोनों मिलकर बच्चों को और थोड़ा प्रोत्साहन देंगे, पर्सनल अटेंशन देंगे ताकि वो स्कूल आने में हिचकिचाए नहीं। आपको गुड टच बैड टच का ये बच्चों को बताया गया, बच्चे ने बहुत अच्छा सुंदर से नाटक से बता दिया। मैं बहुत देखा हूँ कि पेरेंट्स लोग बच्चों को छोड़ेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे और उसके बाद बच्चों को भेजेंगे, देखते रहेंगे, हाँ बच्चे चले गए आते चले गए। कुछ बच्चे रिक्शा में जाते हैं, बस में जाते हैं, वैन में जाते हैं, उनकी भाषा पर प्लीज ध्यान दीजिए। अगर वो बच्चे कुछ अपशब्द बोलते हैं या कुछ हरकत करते हैं, आप सावधान हो जाइएगा कि हाँ वैन में बड़े बच्चे भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, उन लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होंगे या रिक्शा वाला या वैन वाला बच्चों को चुप कराने के लिए गाली दे रहा होगा, डांट रहा होगा, वो बच्चे तुरंत सीख लेंगे। उनकी भाषा पर तुरंत नियंत्रण रखिएगा। आप उसको ड्राइवर को बताइए, अगर ड्राइवर नहीं सुन रहा हो हम लोग या बड़े लोग को बता दीजिएगा, गार्ड लोग को बता दीजिए ये फलाना ड्राइवर है। तो ये सेफ्टी फर्स्ट, वही तो मैंने शुरुआत में कहा था, सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता हम लोग सेफ्टी के लिए देते हैं। आप देखेंगे हम लोग 1,25,000 रुपये केवल सिक्योरिटी गार्ड के लिए हर महीने खर्चा करते हैं। 2 गनमैन और 2 यानी 4 मिलिट्री गार्ड्स हमारे पास, फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स क्लास में। और एक बार जब बच्चे को छोड़ने आएंगे 6-7 आंटी लोग आया लोग खड़े रहेंगे बच्चे को ले जाने के लिए, टॉयलेट ले जाने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, सब बच्चे की सेफ्टी हम लोग किसी और को नहीं देते, कोई रिस्क ही नहीं लेते। इसलिए जब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है, शुरुआत में मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ही बच्चों को छोड़ने आइएगा, टीचर को पहचानिएगा और टीचर आपको पहचानेगा किस बच्चे का कौन माता पिता। पहले दिन से ड्राइवर के साथ मत भेजिएगा या किसी और अजनबी के साथ मत भेजिएगा। और हर एक दिन कोई ना कोई स्टाफ लेकर आ जाता है, आपका कोई शॉप हो, आपका कोई फैक्ट्री हो, हर दिन आप एक स्टाफ को भेजते हैं बच्चों को लेने के लिए या छोड़ने के लिए, टीचर लोग कंफ्यूज हो जाएगा। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते कि पेरेंट्स के सिवा कोई बच्चों को लेने आए, और आप बुरा भी मानेंगे फिर भी अगर आप किसी दादा को भेजें, नानी या चाचा मामा किसी भी भेजेंगे, हम लोग आपको फ़ोन करेंगे। जो नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है उसी से हम लोग फ़ोन करेंगे पूछने के लिए कि आपने भेजा कि नहीं, उसके बाद ही हम लोग भेजेंगे। या आप अंडरटेकिंग लेटर लिख कर दीजिए कि हाँ मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, उनके साथ मेरे बच्चों को भेजेंगे, फिर भी हम लोग फ़ोन करेंगे कि लेटर आपने भेजा कि नहीं। इसलिए आपको थोड़ा सहयोग देना कि क्या उसको बार बार फ़ोन करके तंग कर रहा नहीं, बच्चे के विषय में हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए अगर बच्चों को आप छोड़ने आते शुरुआत में टीचर से मिली और जब छुट्टी होती है तब भी टीचर लोग बच्चों को आपके हाथ में हवाला करेंगे, तभी आप लेकर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कुछ महीने के बाद हो सकता है वैन वालों से बात कर लेंगे, वैन वाला परिचित हो, रिक्शा वाला परिचित हो, गाड़ी वाला परिचित हो, आपने उनको दे दिया, सौंप दिया, बच्चे ले आ रहे। अगर आप किसी गाड़ी वालों को हटा कि अपना खुद का ड्राइवर कोई है, ड्राइवर को आपने हटा दिया, नौकरी से हटा दिया, किसी और ड्राइवर को रख दिया, प्लीज इन्फॉर्म। आप प्रिंसिपल को आकर क्लास टीचर को बता दीजिए कि हमने ड्राइवर चेंज कर दिया, यही ड्राइवर है, पुराना ड्राइवर
को साथ मत भेजें, क्योंकि हमारा विद्यालय में हो चुका कि पुराना ड्राइवर बदला लेने के लिए वो आता, जिस दिन आपने निकाला उसी दिन आएगा, बच्चे को नहीं मालूम, टीचर को भी नहीं मालूम, वो ले जाकर 4-5 दिन के बाद हम लोग ने वार्ता शुरू किया। जब हम लोग सोनभद्र में थे, मिर्जापुर में घटना घटी है, मिर्जापुर में हम लोग जानते हैं, इसलिए कोई किसी को। और तीसरी बात है, घर में कोई मनमुटाव हो, कोई आपका खिलाफ हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, बच्चों के ऊपर बदला लेने के लिए चांसेस बहुत है, याद रखिएगा। अगर आप कोई वकील है, जज है, कोई डॉक्टर है, कोई आपके खिलाफ हो और वो मालूम है कि आपका बच्चा स्कूल में अकेले जा रहा, तो देयर इज अ रिस्क, प्लीज इन्फॉर्म द टीचर। जब तक मैं नहीं आऊँगा और आऊँगी, किसी के साथ मत भेजिए, हो सकता रिश्तेदार भी हो, बच्चे तो सोचेंगे ये तो मेरा रिश्तेदार, मामा, चाचा, मैं इनके साथ चले जाऊँगा। नहीं, अगर आपका कोई उनके साथ कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई डिस्टर्बेंस हो फैमिली में, भगवान ना करें, कृपया टीचर को बता दीजिए कि केवल मेरे साथ लिखित, तो हम लोग उसको मानेंगे। टीचर ये वाला है। और जब भी आप आते हैं बच्चों को लेने के लिए, बीच में कोई इमरजेंसी आता है, आपको 2 फॉर्म्स देते हैं, 2 फॉर्म्स हम लोग देते हैं। ये इमरजेंसी लीव एप्लीकेशन, इमरजेंसी लीव एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। उसमें डिटेल्स है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, डेट, टाइम, गार्डियंस नेम, माता पिता का नाम, रिलेशन यानी बच्चे का क्या आपका रिश्ता है उनके साथ, घर ले जाने के लिए क्या कारण है आप लिख दीजिएगा, आप फोन नंबर लिख दीजिए आपका, और पेरेंट्स गार्डियन जो भी बच्चे को लेने आते हैं उनका साइन करेंगे। तो वो फॉर्म मेरे पास आएगा, व्यक्तिगत रूप में मेरे पास आता, मैं चेक करूंगा, रिलेशन चेक करता हूँ पहले, कौन आया, माता पिता है, ठीक है, तो उसके बाद मैं साइन करके टीचर के पास भेजूँ, तो टीचर वो फॉर्म देखेगी कि आप फलाने व्यक्ति का माता पिता है, बच्चे को पूछेगी क्या ये आपका माता पिता, ठीक, तो डी स्टॉप जाकर बच्चे को साथ में लेकर आएगा। एग्जिट पास उसके बाद बनता है, एग्जिट पास, उसमें फिर आपको ये सब लिखना है, लिखकर ये गेट मैप ले लेगा, एग्जिट पास ये गेट मैप ले लेगा, उसके बाद बच्चे को आप ले जा सकते हैं। अगर आपने कोई गलत भरा इसमें रिक्वेस्ट फॉर्म में, क्लास गलत भरा, सेक्शन गलत भर दिया आपने, कुछ भी हो तो आप लोग बच्चे को भेजते नहीं, तो आप लोग को शक होने लगता, तो हम लोग ऊपर, या बच्चे ने बोला कि मैं इनको नहीं जानता क्लास में, या टीचर बोलती है कि नहीं उनका पिता तो फॉरेन में, ये पिता लिखा कुछ नहीं, फादर्स ने उनका पिता तो कहीं और है, तो ये कैसे झूठ हो सकता, तब भी हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं, वो मतलब कंप्लेंट तक हो जाता है, पुलिस कंप्लेंट तक। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, जब बच्चे को लेने आते हैं, बच्चे का पूरा डिटेल्स लेकर आइएगा। हर अभी 1 महीने के अंदर हर एक बच्चे को हम लोग ID कार्ड देते हैं, ID कार्ड मिलेगा हर एक बच्चे को, और बच्चे को पूरा उसका नाम रहेगा, आधार कार्ड नंबर रहेगा, पेरेंट्स कार्ड का नंबर रहेगा, तो वो कार्ड हमेशा बच्चे के साथ भेजिएगा, ताकि हम लोग को भी पता चले, और कहीं गाड़ी वालों को भी मिसप्लेस हो गया तो पता चले कि इनका एड्रेस क्या है, बच्चे का नाम क्या है। ये बच्चों को ले जाने के लिए डायरी में पहले पेज में हम लोग ये दिखते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डायरी आपको आज मिल जाएगा नर्सरी बच्चों को, जैसे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आप क्लास में जाकर टीचर से डायरी लीजिएगा, ये स्कूल डायरी, इसमें फर्स्ट पेज डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे पेरेंट्स को पूरा डिटेल्स देना बच्चों को कि उनका कैसे बच्चे स्कूल घर जाएंगे आएंगे, क्या गाड़ी है, ड्राइवर का नाम, उसके साथ साथ अगर इनका कोई भाई बहन यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका नाम, ये सब भर के विदिन 2 डेज आप टीचर को जमा कर दीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग को फाइन में रहता है, कोई भी डाउट हो जो भी हो हम लोग इसी को वेरीफाई करते हैं। आपका सिग्नेचर इसमें क्या है और फॉर्म में क्या है, वो सब हम लोग कंपेरिजन करेंगे। उसी तरह ये एक और फॉर्म इसमें है, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, मेडिकल, अगर बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई दवा से एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम आ सकता, वो मेडिसिन खाना हो, जो भी मेडिकल का प्रॉब्लम है वो टीचर को बता दीजिए, इसमें लिख दीजिए। अभी इस साल हम लोग ने नर्सरी LKG UKG क्लास को हम लोग ने एयर कंडीशन कर दिया है, ताकि गर्मी में बच्चों को
दिक्कत ना हो, ये सब एयर कंडीशन क्लासरूम्स। लेकिन अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम लोग पहले से बता दीजिए, ताकि टीचर लोग भी सावधान रहें मेडिकल केस के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको बैक में मेडिसिन है, टीचर को बता दीजिएगा। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम आता है, बैक में मेडिसिन है, आप दे सकते हैं। 2, हम लोग के पास फुल टाइम नर्स है, ट्रेन नर्स है, और नर्स के साथ हम लोग पूरा ट्रेनिंग के साथ करते हैं। लेकिन कोई दवा हम लोग नहीं देते, कोई दवा हम लोग नहीं देते जब तक डॉक्टर की सलाह ना मिले या पेरेंट्स हम लोग को बताएंगे। इसलिए आप मेडिकल हिस्ट्री भी भर के देने का कष्ट करें। These are the rules and regulations of the school। आप इतना तो विश्वास रखिएगा, आपके बच्चे खुशी से आएंगे, खुशी से पढ़ेंगे, ये हम लोग का वादा है। और जो प्रोग्राम आपने देखा, ये मात्र 3-4 दिन में इन लोगों ने किया था। कल उन लोग आए थे प्रैक्टिस के लिए छुट्टी के समय, परसों 2 दिन लोग प्रैक्टिस के लिए आए थे। हमारे टीचर लोग हैं, इन लोग समर्थ हैं, काबिल है, एबल है, एंड दे विल डेफिनेटली डू इट, बिकॉज आई एम नोन फॉर द लास्ट 30 years आई एम इन्वॉल्व इन दिस स्कूल। जब 96 में पहले शुरुआत में स्कूल में आया था, क्लास 5 तक था स्कूल, 6, 7, 8, 10th का पहला बैच निकाल कर मैं इधर से गया था। और मेरा स्टूडेंट यहाँ पर टीचर्स अभी टीचर्स है, मेरा स्टूडेंट भी। तो विभिन्न स्कूलों से हम लोग काम कर चुके, सेंट जोसेफ कॉलेज इलाहाबाद। लेकिन मुझे गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में सिस्टर मेरी है, जो कानपुर के कम से कम 10% टीचर्स लोग विभिन्न विद्यालय में जो पढ़ते हैं, उनका टीचर्स रह चुके हैं। शी वॉज ए टीचर ट्रेनर, जहाँ TTC कहते हैं, ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। उनका प्रिंसिपल 15-12 साल रह चुकी है। और मैं तो बता रहा हूँ 10-15% का जितने भी टीचर विभिन्न स्कूलों में, अड्डा से लेकर वीरेश्वर तक, सेडौराशी से लेकर सेंट मेरीज तक, सब इनका स्टूडेंट रह चुके हैं और आज सफल टीचर्स लोग हैं। इसके अलावा इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डीन ऑफ स्टडीज, जहाँ PhD जो बच्चे PhD करते थे डॉक्टर, उनका ये मॉनिटर रह चुके हैं, डीन ऑफ स्टडीज। और जिस स्कूल में अभी मैनेजर है, वो स्कूल 160 years 160 साल पुराना। तो इन लोगों ने विद्या देखा, समझा है और उनको बांटा है, एक विद्या ज्योति की तरह वो हमारे बीच में। मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेषकर सभी पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता। आपने आज हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं बच्चों को भविष्य के लिए। हम लोग सब मिलकर बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाएंगे, ये हमारी वादा, प्रॉमिस। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। Thank you, Father, for clearly explaining the rules and regulations. Your guidance will surely help us to maintain discipline and move in the right direction. Before we conclude, it is time to express our heartfelt gratitude. I request our school principal to deliver a vote of thanks. मैं ऑलरेडी धन्यवाद कर चुका हूँ। मैं सिस्टर डॉक्टर मेरी मैथ्यू को धन्यवाद आभारी हूँ कि वो समय निकाल कर हमारे बीच में आई है और हमें इतना प्रोत्साहित शब्दों से द्वारा प्रेरित किया है। धन्यवाद सिस्टर जी। और सभी पेरेंट्स को फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका सहयोग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये दुकानों में, बड़े बड़े होटलों में, बैंकों में लिखा रहता है कस्टमर इज गॉड, कस्टमर गॉड। उसी तरह विद्यालय में पेरेंट्स ही हमारे लिए भगवान है। और पेरेंट्स का मतलब बच्चे हमारे लिए भगवान है, और बच्चे के रूप में आप लोग भी हमारे लिए भगवान हैं। उसी रिस्पेक्ट के साथ आज हम लोग को स्वागत करते हैं। आप, हम और बच्चे मिलकर हम लोग भारत देश बनाएंगे, उज्जवल देश बनाएंगे। ये इस नई प्रेरणा के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे टीचर्स, कोऑर्डिनेटर प्राप्ति मैम और सभी टीचर्स लोगों ने मिलजुल कर ये काम किया। बाकी टीचर लोग का क्लास चल रहा, कुछ टीचर लोग बोर्ड एग्जाम के लिए चले, करेक्शन के लिए, लेकिन केवल हमारा KG टीचर्स मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है। सारा सब कुछ जिम्मेदारी निभाया है, हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे डांस टीचर चंदन साहब पीछे खड़े हैं, वो वन मैन आर्मी है,
वो जो भी टॉपिक उनको दीजिए वो एकदम तैयार कर लेते हैं, चाहे नर्सरी बच्चे हो 12th बच्चे हो, वो उनके लिए मैं हमारी हूँ। प्रीति मैम आज नहीं है, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारा टेक्निकल टीम एलेक्स सर, विवेक सर एंड विवेक सर बर्नाड जी, और हमारे कैमरा मैन मिस्टर जॉन सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर एक बार सभी टी स्टाफ यहाँ पर खड़े होकर उन लोगों ने स्टेज मैनेजमेंट किया, सबों को फिर एक बार धन्यवाद। एंड स्पेशल वर्ड ऑफ थैंक्स टू आवर कैप्टन्स have been standing here like pillar. Yes, they are there always to inspire and to motivate all of us. Thank you. God bless you all. Now I request everyone to please stand up for the national anthem. Thank you.